Anji Suhana, please take the screenshot of participants after 15 minutes. Keep it with you. In the end, leave it in my class. 16. Okay, only 2 students are present here today. Very good. Only Bhavya and Suhana. Right, students, let us start with our topic. This child is again at last. Come on front seat. आपको बोला मैंने, आप आइए उठ के यहाँ पे. What about your mask? आप आगे आइए उठ के. Yes, am I audible now? Clear? Bhavya, Suhana? Okay, जी. Okay, got it. चलिए students, yesterday we started with soil can absorb water, right? Fourth property of the soil, we started soil can absorb water. हमने करा percolation. What is the meaning of percolation? Can anybody explain me? Yes, Natik. In which the water passes through the soil. That is percolation. ठीक है? तो that is rate of percolation. कितना water उसमें से पास होता है, that is the rate of percolation. Rate of percolation का हमने time formula किया था. What was the formula of rate of percolation? Volume of water collected in ml over time taken in minutes. Time taken in minutes, right? That is rate of percolation. Now next property is soil can absorb water. Soil water absorb करता है. Got it? So students, इसको भी हमने start किया था. We did with an example. हमने क्या किया? We took 3 beakers, say 1 लिया था. चलो 1 से कर लेते. Let us do it with 1. Then students, what we have to do? We have to add soil here, right? Then we add water using dropper. Calculated amount of water is to be poured. जब तक पानी pour करना है, जब तक इसमें से dripping शुरू ना हो जाए, वो drip करना ना start कर दे. Then wait it for some time. What you will see that after some time, some water gets collected here in the beaker, but eventually it stops. धीरे धीरे ये रुक जाएगा. Then question is, ये जो water नीचे collect हुआ, this water is not absorbed by the soil. इसका जो amount है वो इससे कम होगा. Suppose we have taken कितनी quantity ली? 500 ml water लिया हमने, जो इसमें डला, and here we get 250 ml water. Here, got it? कितना भी हो सकता है. Now the question is, कितना absorb हुआ? 250 ml. उसमें बेटा आपको एक चीज बतानी है. इसको मैंने क्या कहा था? इनिशियली जो पानी लिया, that is known as initial volume. को क्या लिखते हैं हम? Initial volume is equal to U. Then
Final volume of water? V. Then amount of water absorbed. कैसे? U minus V आएगा. एक मिनट, तो आपने ये उल्टा पुल्टा बोल दिया ना. ये इनिशियल वॉल्यूम V होगा फिर. नहीं बेटे नहीं, इनिशियल वॉल्यूम होगा फिर V जो पहले लिया, और फाइनल वॉल्यूम होगा U. गॉट इट? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? V माइनस U मीन्स V कितना है? 500. U कितना है? 250. मीन्स हाउ मच ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल? 250 ml. गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हमने कर दिया. एक और चीज हम करते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड. इसके साथ ही निकल के आता है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड. एक और चीज का ध्यान रखो, यहां पे 1 ml का मतलब होता है 1 ग्राम, यानी 250 ml का मतलब हुआ 250 ग्राम. इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो. गॉट इट? तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड का क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ वाटर, क्योंकि हम वेट कंसिडर कर रहे हैं. वेट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड, वेट ले रहे हैं ना हम यहाँ पे. वेट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल अबाउट किसके साथ? वेट ऑफ सॉइल. कितनी सॉइल थी? गॉट इट? कितनी हमने सॉइल ली, उसने कितना पानी एब्सॉर्ब किया, क्या परसेंटेज है? इनटू 100. गॉट इट? नाउ कितना वाटर एब्सॉर्ब हुआ? 250. कितनी सॉइल ली थी? 50 ग्राम इंटू 100. 0 0 कैन ये कट हो गई. 5 5 0 500%. गॉट इट? हाँ जी बेटा, 50 इज द वेट ऑफ सॉइल. 5 5 25 हो गया ना. गॉट इट? इज दिस क्लियर? कोई भी इक्वेशन हो सकती है. एक सम करो. डू वन न्यूमेरिकल. हरी अप. साइड पे ही हूं, लिखना स्टार्ट कीजिए. रेट ऑफ सॉइल है, हमने स्टार्टिंग में लिया था. सॉइल कितनी ली थी बेटे? ये तो वॉल्यूम एब्सॉर्ब्ड है. ठीक है, हमने उसको वेट में कन्वर्ट कर दिया. राइट?
स्टूडेंट्स लिखिए, राइट डाउन द स्टेटमेंट. ml of water takes 10 minutes Students, have you heard the statement I have spoken? I have said 50 ml of water has taken 10 minutes to completely percolate. Find the percolation rate of water in soil. Got it? This is one first numerical. Coming to, yes, Bhavya? Wait. Solve करो. हाँ जी सॉल्व करो. अभी दूसरा भी लिखो. मैम दोबारा से रिपीट कर दो आपकी आवाज. Stop it. Did I tell you to speak like this? 50 ml of water takes 10 minutes to completely percolate. Find the percolation rate of water. Formula लगा के statements लिख के solve करो. Find the percolation rate of water. Find the percolation rate of water. 5 milliliter per minute. Got it? दूसरा सम लिखिए. Write the second sum. इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? Percolation rate. Percolation rate is equal to volume of water percolated over time taken for percolation. लिखिए. 100 gram of soil is taken. 100 gram of soil is taken and 60 ml of water is poured on it. 60 ml of water is poured on it. 100 ml कर लो चाहे. 100 ml of water is poured in it. 100 gram of soil is taken and 100 ml of water is poured on it. And the water collected in the beaker, and the water collected in the beaker is 70 ml. Find the percentage of water absorbed by soil. Find the percentage of water absorbed by soil. I repeat, online students, एक बार question repeat कर रही हूँ. 100 gram of soil is taken and 100 ml of water is poured on it. And the water collected in the beaker is 70 ml. Find the percentage of water absorbed by the soil. Do it. क्या हो रहा है ये? हाँ? कैसे?
लाइए क्या किया आपने, दिखाइए जरा। गो टू मेडिकल रूम। 70 ml है कि 60 ml? 70 ml है। क्यों एब्जॉर्ब 70 क्यों हुआ? 70 ml क्या कर रहे हो, सारी स्टेटमेंट ही गलत लिखी है। 100 ml of water is poured on it and the water collected in the beaker is 70 ml. ये गलत है, गलत है। एब्जॉर्ब कितना हुआ पहले? गलत है। 100 minus 70 ml 30 ml। उसके बाद परसेंटेज कितना एब्जॉर्ब हुआ? 30 over 100. हाँ 30 over 100. 30 Over 100 into 100. 100 into 100 means 30%. 30% is the answer. निकला? 30% आंसर निकला या नहीं? Yes. Are you able to get it or shall I solve? Yes, Shantanu. Why you are here? मैम आपने मीटिंग आईडी सेंड की है ना मैम, वो वाली ज्वाइन नहीं हो रही उससे। क्या बेटा? मैम जो आपने मीटिंग आईडी ग्रुप में सेंड करी है मैम, उससे ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। मैंने कोई मीटिंग आईडी सेंड नहीं करी ग्रुप में। Get? वो आपने जसमिंदर मैम को भेजा नहीं था? नहीं, no, not at all. हम वो कह रहे हैं क्लास टीचर ने मेरे को मैसेज करा, वो उन्होंने मैसेज भेज दिया था। नहीं बेटा नहीं, I didn't send anything. आपका एसएसटी का पीरियड है, रिचा मैम को ज्वाइन कीजिए। मैम फर्स्ट क्लास कौन सी है फिर? एसएसटी की ज्वाइन नहीं हो रही बेटा फिर आई एम नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं है। हम नो ज्वाइन नहीं हो रही। ओके Okay, join the second class then, okay? Yes, students. What is the problem in this? कितना आया हमारा? 70 कैसे आया? सुनिए, आपने क्या गलती करी है? वेट करो। मेरा क्वेश्चन है 100 ml उसने वाटर लिया और 100 ग्राम सॉइल है, तो यहाँ पे कितना कलेक्ट हुआ? 70 ml। तो मुझे बताइए कितना एब्जॉर्ब हुआ? चुप करो, आपने भी गलत लिखा था। कितना एब्जॉर्ब हुआ बताइए? V कितना है? 100। U कितना आया? तो कितना एब्जॉर्ब हुआ? 1 ml is equal to 1 gram. तो 30 ml is equal to, हाँ जी, हाँ जी। आगे परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ? 30 about upon amount of soil 100 multiply by 100, ये कैंसल, it is equal to, this is the answer. क्या किया आपने? पता नहीं 70 कैसे आ गया। ये वाला स्टेप तो आप छोड़ ही गए। मेरा क्वेश्चन ये था, इतना ml पानी लिया और आपके बीकर में इतना कलेक्ट हुआ, तो एब्जॉर्ब कितना है? जो उसमें से माइनस करके आएगा V माइनस U, मीन्स इतनी परकोलेशन हुई, बट एब्जॉर्ब कितना हुआ? माइनस करके आएगा। गॉट इट? अगर बोलना थोड़ा कम करो ना, शायद न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ जाए और मार्क्स भी थोड़े बेटर आ जाए। ये नहीं पता। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अलग अलग तरह की सॉइल्स, क्या कहते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। कहीं पे कौन सी टाइप की, तो हर सॉइल का
अलग अलग रेट ऑफ परकोलेशन होगा, हर सॉइल की अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होगी। तो इस हिसाब से उस तरह की क्रॉप्स ग्रो करती हैं। कई क्रॉप्स को ज्यादा वाटर चाहिए, सो वो उस क्रॉप में, उस सॉइल में ग्रो करेंगी जो ज्यादा वाटर होल्ड कर पाती हैं। कईयों को बहुत कम वाटर चाहिए, तो दे विल ग्रो इन दैट प्लेसेस व्हिच कैन नॉट होल्ड वाटर। सो सॉइल और क्रॉप्स का आपस में रिश्ता है। द टाइप ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन, before that it is to be checked first which type of soil is suitable. Is this clear? एक आपकी बुक में केस स्टडी दी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। उसने कहा 3 बच्चे हैं, जौहन, रशीदा, राधा। ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी। जौहन, रशीदा एंड राधा ये लीलाधर दादा के पास गए और संतोष मलविया के पास गए सुहागपुर मध्य प्रदेश में, राइट। लीलाधर दादा कुछ चीजें बनाने के लिए, जैसे कि सुराही, मटकी, ये ऐसी जो है कल्ला, जिसको अर्दन फ्राइंग पैन बोलते हैं, ये बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उनके आपस में बीच में कन्वर्सेशन हुई। बच्चे पूछ रहे हैं ये सॉइल आप कहाँ से लेके आए हो? तो दादा ने जवाब दिया कि ये सॉइल ब्लैक सॉइल है, हम इसको खाली बंजर जगह से लेके आए, बैरन लैंड, इनफर्टाइल लैंड, जहां कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं की गई, राइट। तो उनका आगे क्वेश्चन, ये सॉइल आप ये बनाने के लिए अर्दन पॉट्स कैसे प्रिपेयर करोगे? तो दादा आंसर करते हैं कि सबसे पहले मैं इस ड्राई सॉइल को एक बड़े से टैंक में रखूंगा, उसमें से पत्थर निकाल लिए जाएंगे। देन उसके बाद मैं इसको कुछ 8-10 घंटों के लिए इस सॉइल को पानी में सोक कर दूंगा। देन आफ्टर दैट उसको गूंदा जाएगा, नीड किया जाएगा आटे की तरह, साथ में हॉर्स डंग को मिक्स किया जाता है, उसके साथ हम इसको नीड करते हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इस नीडेड सॉइल को, ये जो हमने गूंदी है सॉइल, इसको हमने व्हील के ऊपर चढ़ाना है। चरखा, ये क्या कहते हैं उसको, टायर टाइप्स होता है ना, व्हील, उसके ऊपर रख के ये बर्तन बनाते हैं। नहीं, चरखा नहीं होता, व्हील ही बोलते हैं उसको, चक्कर, क्या बोलते हैं इसको, टायर टाइप्स, ठीक है, वो घूमता है, चक्रा, ठीक है, राइट। देन उसके बाद बच्चे, उसके बाद वो कहता है कि उसको हम एप्रोप्रिएट शेप देंगे, और ज्यादातर शेप हैंड्स से दी जाती है, राइट। उसके बाद फाइनल शेप देने के बाद इनको 3 दिन तक सूखने डाला जाएगा, धूप में रखा जाएगा, ड्राई किया जाएगा, फिर इसके ऊपर कलर किया जाएगा, राइट। उसके बाद इनको सारी आइटम्स को हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है ताकि ये टूटे ना, राइट। कब बेक किया जाता है? हवा में सुखाने के बाद इनको हाई टेम्परेचर में बेक करते हैं। इज दिस क्लियर? देन दादा, हाँ जी, तो ऐसे ही बनते हैं, हाँ तो इकट्ठे ही बनते हैं, हाँ। बेक उन्होंने बड़ी बड़ी भट्टियां लगा रखी होती हैं, राइट, फर्नेस बोलते हैं उसको। देन दादा कहते हैं, अब क्वेश्चन ये आया कि हॉर्स डंग को सॉइल में क्यों मिक्स करना पड़ता है? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रेपरेशन भी आ सकती है, हाँ ना ना, उसके वहां पे खेती थोड़ी करनी है। वो क्या कहते हैं, ये जो बर्न्ट हॉर्स डंग यूज की जाती है, इससे क्या होता है, पोर्स जो होते हैं सॉइल के ओपन हो जाते हैं। लिसन, सॉइल के पोर्स ओपन हो जाते हैं, इससे हवा आती जाती रहती है और अंदर घड़े का, सुराही का पानी ठंडा रहता है। Got it? With this we have finished the chapter. Next day we will be doing question answers.